let's start with this very first lesson, reproduction in lower and higher plants. सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि रिप्रोडक्शन होता क्या है. व्हाट इज रिप्रोडक्शन? सो रिप्रोडक्शन एज यू नो, आपने पढ़ा है ये पहले स्कूल टाइम से ही पढ़ते आ रहे हो आप. रिप्रोडक्शन is the property which is shown by living organisms, and it is the ability to produce the young ones which are like the parents. So we call this as reproduction, characteristics shown by the living organisms. Reproduction is essential process as it leads to continuation of species as well as to maintain the continuity of life. Reproduction ये काफी ज्यादा essential important process होता है. क्यों important process? Continuation of species. कोई भी species, किसी भी species को अगर life continue करना है तो reproduction की जरूरत होती है. As well as to maintain the continuity of life, each organism has its own particular method of reproduction. हर एक organism के पास एक स्पेसिफिक मेथड होती है रिप्रोडक्शन की. रिप्रोडक्शन इज नथिंग बट कैन बी आल्सो कॉल्ड एज perpetuation. Perpetuation means the same, to give birth to the young ones. Every organism, every species, whether it is a plant species or animal species, every living organism has its own capacity to give rise to their young ones, their own process, own way, own method. All these methods generally fall under two categories. तो reproduction के methods को हम दो categories में क्लासिफाई करते हैं, asexual reproduction and sexual reproduction. तो basically reproduction दो types का होता है, asexual and sexual. Now what is asexual reproduction? Asexual reproduction does not involve fusion of two compatible gametes or sex cells. Asexual, so जैसे यहाँ पे लिखा है asexual means without fusion, no involvement of the two gametes, यानी मेल. सी देखो reproduction process के लिए sexual reproduction भी require gametes of opposite sex, male gamete and female gamete. तो asexual reproduction ऐसा reproduction है जहाँ पे दोनों जो gametes है male and female, they never fuse, no fusion of two gametes. It is the process resulting in the production of genetically identical progeny from a single organism and inherits the genes of the parents. तो किसी एक सिंगल पेरेंट से, यानी फीमेल पेरेंट है, मेल पेरेंट है, किसी एक ऑर्गेनिज्म से भी asexual reproduction possible है. Any one parent can also give rise to the next generation in case of asexual reproduction, but the resulting offspring, the resulting individual is morphologically and genetically identical to the parent, and hence it is called as the clone. Asexual reproduction में जो resulting organism होता है, individual होता है, वो similar होता है, similar characteristics दिखाता है, similar morphologically as well as genetical characters, all similar to the parents, and hence they are called as clone. Clone का मतलब होता है genetically similar to the parent cell. Organisms choose to reproduce asexually by different modes or ways. तो asexual reproduction के different modes है, modes of asexual reproduction. कौन-कौन से modes है? First is fragmentation. आपने ये पढ़ा है asexual reproduction के बारे में 10th standard में, 10th class में आपने पढ़ा था. Different types of asexual reproduction. पहला पढ़ा था fragmentation. Fragmentation में क्या होता है देख रहे हैं आप, फ्रैगमेंट्स बनते हैं. ये फ्रैगमेंटेशन नहीं, ये बडिंग है. इन स्पाइरोगायरा, हैव यू सीन दैट स्पाइरोगायरा एल्गी? यस, आपने देखा है किंगडम प्लांटी लेसन में. फिलामेंटस एल्गा, स्पाइरोगायरा. तो फिलामेंटस एल्गी के जब फिलामेंट्स के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, पार्ट्स होते हैं, फ्रैगमेंट्स होते हैं, उस प्रोसेस को बोला जाता है फ्रैगमेंटेशन. Means a single spirogyra, a single filament of spirogyra, when it undergoes small fragmentation,
when it undergoes fragmentation, gets divided into small fragments known as fragmentation, a process of asexual reproduction. Multicellular organism can break into fragment, यानी फॉर एग्जांपल आप यही डायग्राम देख लो तो क्या होता है, स्पाइरोगैरा है फिलामेंट की तरह और उस फिलामेंट के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं. ओके, इट ब्रेक्स एट स्पेसिफिक लोकेशंस, दैट इज कॉल्ड फ्रैगमेंट्स. तो वो जो छोटे टुकड़े हैं उन्हें हम बोलते हैं फ्रैगमेंट्स. एंड दिस इज सीन इन स्पाइरोगैरा, alga. These fragments grow into new individuals. और हर एक फ्रैगमेंट के पास एबिलिटी होती है टू ग्रो इनटू अ न्यू इंडिविजुअल. यानी एक ही पेरेंट सेल से जब ऑफस्प्रिंग नहीं बोलते, हम इसे क्लोन्स बोलते हैं बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ द पेरेंट सेल ओनली. दिस इज फर्स्ट मोड ऑफ reproduction or sexual reproduction. Second mode है budding. Budding is observed in case of yeast. It is the most common method of asexual reproduction in unicellular yeast. Unicellular यानी single celled yeast. The common method है budding. Usually it takes place during favorable conditions by producing one or more outgrowths. कब होता है budding yeast में? During favorable environmental conditions. Outgrowths are formed which are known as buds, and when these buds separate from the parent cell, they develop into a new individual. Observe here budding. ये एक mother cell है yeast का. Yeast is a fungus, edible fungus. Yeast used in confectionaries यानी बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं, वो बनाने के लिए हम yeast fermentation में यूज करते हैं yeast. So a mother cell produces outgrowths. These outgrowths are known as the buds, buds, buds. And when this bud separates from this parent cell, it will act as a new yeast, new organism. तो ये हो गया asexual reproduction. यहाँ पे कहीं भी दो मेल गैमेट्स फ्यूज नहीं हो रहे हैं, hence it is called asexual reproduction. Getting this part, give me reply in the chat box. I want reply from your side. Are you getting this? Rushikesh, Aditya, Ekta, Tanmay, Tanvi, Aditya, Rutu, Shraddha, Yogita. All should answer me. समझ में आ रहा है आपको? पहले हमने देखा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसके टाइप्स देखे, फ्रैगमेंटेशन. उसके बाद हमने देखा बडिंग, बडिंग इन ईस्ट, फ्रैगमेंटेशन इन स्पाइरोगैरा. यस, बाकी व्हाट अबाउट अदर्स? एवरीवन शुड आंसर. आपने क्लास लगाया है तो आपको अटेंड करना है लेक्चर्स विथ फुल अटेंशन, कंसंट्रेशन के साथ. आपको तो जो भी पढ़ाया जा रहा है, पूछा जा रहा है, उसका आपको आंसर्स देने हैं. आर यू गेटिंग दिस ऑल ऑफ यू? ओके, तो ये हो गया बडिंग. नेक्स्ट मेथड और मोड ऑफ asexual reproduction, spore formation. Now some organisms they produce some type of spores. जैसे आपको यहाँ नजर आ रहे हैं zoospores produced by Chlamydomonas. Chlamydomonas is again a type of alga which produces zoospores. In Chlamydomonas, asexual reproduction occurs by flagellated. Flagella यानी क्या? ये जो tail like structure है इसे हम बोलते हैं flagella. Flagellated motile spores which can grow independently into new individual. तो एक ही बड़ा सा zoospore है, Chlamydomonas का parent cell है जिसे हम बोलते हैं zoosporangium, which is a sac-like structure, and this sac-like structure it produces many new small individuals known as the zoospores. Known as the zoospores. Okay. Other methods of asexual reproduction include binary fission, which occurs in amoeba and paramecium, conidia formation in penicillium, and gemule formation in sponges. अब जो हमने मेथड देखे asexual reproduction की, सबसे पहला फ्रैगमेंटेशन, फिर देखा बडिंग एंड फिर स्पोर फॉर्मेशन. इसके अलावा भी कुछ मेथड्स है जैसे बाइनरी फिजन. आपने पढ़ा है ये 10th में कि अमीबा में
when a parent amoeba single individual gets divided into two equal halves, for example ये suppose amoeba है, इसके ही दो हाफ टुकड़े हो गए, इक्वल है या अनइक्वल भी होता है, बाइनरी फिजन, दो पार्ट्स बनते हैं एक ही इंडिविजुअल के, वी कॉल इट एज बाइनरी फिजन. It is seen in amoeba and paramecium, which are unicellular organisms, unicellular protists. Conidia formation in penicillium. Penicillium नेम का फंगस होता है. क्या होता है पेनिसिलियम? फंगस. उस फंगस में स्पेसिफिक टाइप के स्पोर्स बनते हैं जिन्हें हम बोलते हैं कोनिडिया. क्या बोला जाता है? कोनिडिया. ब्रांचिंग, कुछ स्ट्रक्चर्स बनते हैं ब्रांचिंग स्पोर लाइक स्ट्रक्चर्स which are known as conidia. And conidia are born on conidiophores. Conidiophores के ऊपर conidia बनते हैं. नेक्स्ट, जेम्यूल फॉर्मेशन इन स्पॉन्जेस. आपने पढ़ा है किंगडम एनिमालिया. किंगडम एनिमालिया में जो पहला फाइलम था पोरीफेरा, दे आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस. स्पॉन्जेस में जेम्यूल्स फॉर्म होते हैं. जेम्यूल्स आर इंटरनल बर्ड, यानी जैसे ईस्ट में बॉडी के बाहर बर्ड्स फॉर्म हो रहे हैं, वैसे स्पॉन्जेस में बॉडी के अंदर इंटरनल बर्ड्स बनते हैं. BUDS, birds which are known as gemmules, which are known as gemmules. Okay, yes. तो ये हो गया असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड उसके टाइप्स. अब इसके बाद द कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव प्रोपैगेशन. तो आपने मॉर्फोलॉजी लेसन पढ़ा है, इज यस और नो? लेसन मॉर्फोलॉजी 11th स्टैंडर्ड में, मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड, राइट? तो उसमें हमने कुछ मॉडिफिकेशंस पढ़े थे. मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम, रूट में हमने पढ़ा था रूट गेट्स मॉडिफाइड फॉर द पर्पस ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड. एग्जांपल स्वीट पोटैटो, आइपोमिया बटाटास, एस्पैरागस. एस्पैरागस में हमने पढ़ा था fasciculated roots and dahlia. types of roots modification के root के modifications. What is the purpose? Why they are modifying? For storage of food as well as for vegetative propagation. अब ये होता क्या है वेजिटेटिव प्रोपैगेशन? जब किसी प्लांट का पार्ट नया प्लांट फॉर्म होने में हेल्प करता है, वी कॉल इट एज वेजिटेटिव प्रोपैगेशन. प्रोपैगेशन मींस मल्टीप्लिकेशन. Propagation means to propagate, means to multiply. For example, all have seen potatoes, right? Potato tuber. Potato के ऊपर sprouts develop होते हैं. Potato के ऊपर जो adventitious birds होते हैं, they develop sprout. तो अगर कोई भी sprouted potato हम soil में place कर देते हैं, तो उस potato से हमें new plant मिलेगा. New plant develop होता है. It means we are using the plant part itself to produce a new plant. We are not using seed here, but we are using any part of the plant which has the capacity to develop into a complete new organism. This process is known as vegetative propagation. Then leaf में हमने पढ़ा था bryophyllum leaf, which if we place bryophyllum leaf in soil, it will develop a new plant because it produces adventitious buds. Kalonchi, Bignonia. Stem में हमने देखा था turmeric, which is a rhizome. Turmeric, ginger, turmeric. Tubers में potato tubers. Bulbs में onion, garlic. So these are the different modifications of the plant parts which helps in vegetative propagation, means plant multiplication. In nature, naturally plants want to multiply. देखो अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने में काफी टाइम जाता है कि प्लांट पे फ्लावर डेवलप होगा, फिर फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होगी, फिर सीड डेवलप होगा. तो सीड डेवलप होने तक प्लांट को काफी वेट करना पड़ेगा न्यू जनरेशन ग्रो करने के लिए. तो प्लांट क्या करेगा? अल्टरनेटिव मेथड सिलेक्ट करता है व्हिच इज नोन एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेयर द प्लांट्स रिप्रोड्यूस asexually without the involvement of gametes through their vegetative parts. Hence,
न्यू प्लांट्स फॉर्म आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। देखो जब भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो जो नए प्लांट्स या एनिमल्स बनते हैं वो सिमिलर टू देयर पेरेंट्स होते हैं, ऑल अलाइक, बिकॉज देयर इज नो रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन कब होता है? जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ओके, आर यू गेटिंग दिस? ये समझ में आया सभी को? व्हाट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन? इट इज अ टाइप ऑफ asexual reproduction which is shown by the plants, where the vegetative parts of the plants helps in the formation of new plant. Yes, everyone should answer. तन्मय, तन्वी, आदित्य, ऋतु, श्रद्धा, देखो कितने सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, सभी को आंसर करना है। ऑल, आदित्य, पाटिल, अहिरे, साळुंखे, all should give me reply. समझ ला? किस लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए? इंग्लिश में चाहिए, मराठी में चाहिए, हिंदी में चाहिए, पूरा कॉम्बिनेशन चाहिए, कैसे चाहिए बताइए आप? यू शुड टेल मी। आपको बोलना है यस मैम, यस ऋतु, व्हाट यू वांट आई कैन डिलीवर इन दैट वे लेक्चर। ओ मराठी में, सब कुछ मराठी में, कॉम्बिनेशन चलेगा, ओके, हिंदी मराठी चलेगा। क्यों, मेरा इंग्लिश समझ में नहीं आता है? Yes, you don't understand, you don't like in lecture in English. Please let me know that. हाँ बताओ। Combination, okay. And स्पीड ज्यादा है, कम करनी चाहिए, या कम स्पीड है और ज्यादा चाहिए स्पीड में? यस बोलो स्टूडेंट्स, बताओ। फास्ट लग रहा है, स्लो जाना है? समजतं पण मराठीतून चांगलं समज, ओके। सगळे मराठी आहेत का? ऑल आर मराठी, ऑल कैन अंडरस्टैंड मराठी? थोड़ा स्लो, ओके। सगळ्यांना समजतं का मराठी? सी मी आई कैन टेल, मैं बता सकती हूँ मराठी में, लेकिन अब बायो पढ़ रहे हैं हम तो बायो के जो भी सारे टर्म्स वगैरह तो आपको इंग्लिश में भी प्रोनाउंस करने आने चाहिए, है कि नहीं? तो इसीलिए वो अपने आप आ जाता है इंग्लिश में। ओके, स्लो चलेंगे, ठीक है। आप कुछ बताते ही नहीं, बोलते ही नहीं, तो मैं कैसे समझूंगी स्लो जाना है या फास्ट जाना है? ये सभी को समझ में आ गया? रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स, asexual, two types of reproduction, asexual, sexual। asexual जिसमें दो गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता, डज नॉट इन्वॉल्व फ्यूजन, क्योंकि आपको आंसर तो इंग्लिश में ही लिखने हैं तो आपको ये समझना होगा, है कि नहीं? फॉर्मेशन ऑफ क्लोन्स which are individual similar to their parents। अब इसके हमने मोड्स पढ़े, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? बाय फ्रैगमेंटेशन, बाय बडिंग, बाय स्पोर फॉर्मेशन, बाय कोनिडिया फॉर्मेशन, बाय बाइनरी फिजन, जेम्यूल फॉर्मेशन, ठीक है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि प्लांट्स में कैसा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाय वेजिटेटिव प्रोपैगेशन, जहां पे प्लांट का कोई एक पार्ट प्लांट को नए प्लांट को डेवलप होने में हेल्प करता है। सिंपल प्लांट पार्ट, फॉर एग्जांपल रूट ऑफ अ प्लांट और स्टेम ऑफ अ प्लांट will act as a new individual which will help in the formation of a new plant। So plants reproduce asexually through their vegetative parts। वेजिटेटिव पार्ट कौन से है प्लांट्स के? रूट है, स्टेम है, लीव्स है, ये हो गए वेजिटेटिव
वेजिटेटिव पार्ट्स, ठीक है। फ्लावर, फ्रूट ये वेजिटेटिव पार्ट नहीं है, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है प्लांट्स की, ठीक है। Hence, identical means similar to their parents. There are also few methods which would not occur naturally in the plants. Agriculture and horticulture exploit vegetative reproduction in order to multiply fresh stocks of plants. Artificial methods are used to propagate desired varieties according to human requirements. Okay. अब ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है इसके दो टाइप्स हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल यानी जब नेचर में नेचुरली किसी प्लांट का रूट या स्टेम नए प्लांट को डेवलप होने में हेल्प करता है, उसे हम बोलते हैं नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और जब हम आर्टिफिशियली किसी नए प्लांट को मैनुअल जैसे ह्यूमन इंटरफियरेंस, जब मैन इंटरफियर करता है प्लांट प्रोपैगेशन में, तो उसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल मेथड्स वेयर देयर इज ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट। फॉर एग्जांपल पहला है कटिंग। देयर आर 3 मेथड्स, कटिंग, बडिंग एंड ग्राफ्टिंग। कटिंग में क्या होता है आपको पता है, रोज प्लांट की स्टेम को हम कट करके अगर लगा देते, सॉइल में प्लेस कर देते हैं, तो नया रोज प्लांट डेवलप होता है। आपने किया है कभी ऑब्जर्व? रोज प्लांट स्टेम, it should be with, but it should have 1 or 2 buds. If it is placed in soil, it will develop into new plant, so that is called cutting. So see, the small piece of any vegetative part of a plant having 1 or more bud, बर्ड प्रेजेंट होना काफी जरूरी है। तो अगर आपके पास रोज का स्टेम है लेकिन उसके ऊपर बर्ड होना जरूरी है, and if you place that stem in soil, it will grow into a new plant. Stem cutting, example rose. तो किस प्लांट में किया जाता है स्टेम कट? स्टेम कटिंग्स रोज में बुगेनविलिया। बुगेनविलिया आपने देखा है, पेपर जैसे फ्लावर्स होते हैं, पिंक कलर, व्हाइट कलर, काफी बड़ा ट्री होता है बुगेनविलिया का, श्रब बोल सकते हैं, श्रब, पेपरी फ्लावर्स। लीफ कटिंग, लीफ कट करके अगर हम प्लेस कर दे सॉइल में तो नया प्लांट बनता है उससे। इट इज सीन इन सैंसेविरिया। एंड रूट कटिंग, इफ यू कट द रूट्स एंड प्लेस इन सॉइल, इट विल डेवलप इनटू न्यू प्लांट, एग्जांपल ब्लैकबेरी। तो आपको ये तीनों याद रखना है, स्टेम कटिंग एग्जांपल रोज, लीफ कटिंग सैंसेविरिया, रूट कटिंग ब्लैकबेरी। आया समझ में? कटिंग यानी यहाँ पे ह्यूमंस जाके कट करते हैं प्लांट की स्टेम को, प्लांट के रूट को, एंड उसको सॉइल में प्लेस कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल मेथड। ये नेचुरली होता है क्या प्लांट्स में? नहीं होता, हम कर रहे हैं, ह्यूमंस इसमें इन्वॉल्व है। आया समझ में? नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपैगेशन प्लांट्स में नेचुरली होता है, जैसे पोटैटो नेचुरली जर्मिनेट होता है और वो सॉइल के कांटेक्ट में आ गया तो वहां से नया पोटैटो प्लांट बनेगा। लेकिन स्टेम कटिंग, कोई जब ह्यूमन जाके स्टेम कट करेगा, उसको सॉइल में प्लेस करेगा, फिर ही नया प्लांट डेवलप होगा। तो हेंस इट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपैगेशन। नेक्स्ट इज ग्राफ्टिंग। अब ये ग्राफ्टिंग क्या है? तो देखो हियर, ये इसके ऊपर 1 मार्क क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ग्राफ्टिंग? ग्राफ्टिंग, here parts of 2 plants are joined in such a way that they grow as 1 plant. ग्राफ्टिंग में क्या किया जाता है? 2 प्लांट के पार्ट्स को ज्वाइन किया जाता है। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, एक जो प्लांट है जो सॉइल में रूटेड होता है उसे बोला जाता है स्टॉक। क्या बोला जाता है? स्टॉक। और इसी के ऊपर हम जब दूसरे किसी प्लांट को ज्वाइन करते हैं तो इस वाले प्लांट को हम बोलेंगे सॉइल। व्हाट यू हैव टू से? सॉरी, सायन, SCION, सायन। बट दिस सायन कैन बी एनी बर्ड। ये क्या होना चाहिए? बर्ड होना चाहिए इस सायन के ऊपर। ये बर्ड यहाँ से निकाला और इसके अंदर फिक्स कर दिया, देखो यहाँ पे, और फिर इसे
टाई कर दिया है हमने विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड, वी हैव टाइड इट। तो क्या होगा फिर थोड़े दिनों बाद, ये जो एक प्लांट है ये और ये स्टॉक कंबाइन हो जाएगा एंड दे विल ग्रो एज अ न्यू प्लांट। ओके, सी here two parts of plants are joined in such a way that they grow as one plant. In this method, part of the stem containing more than one bud is called scion is joined onto a rooted plant called stalk. This is called grafting. Whereas budding is also called bud grafting, in which only one bud is jointed on the stalk. Example apple, pear, rose. अब दो मेथड्स है, ग्राफ्टिंग और बडिंग। तो जब हम सिंगल बड यहाँ पे इंसर्ट करते हैं उसे हम बोलते हैं बड ग्राफ्टिंग, जो एप्पल में किया जाता है, पेड़ में और रोज प्लांट में। और जब एक से ज्यादा बर्ड्स होते हैं जो हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, इट इज सिंपली कॉल्ड ग्राफ्टिंग। ओके, इस टेक्निक को हम मराठी में बोलते हैं कलम, कलमी आंबा। ऐकलंय तुम्ही? कलमी आंबा म्हणजे काय की ज्या मँगो मध्ये दोन मँगोच्या व्हरायटीज मिक्सअप केलेल्या असतात, दोन मँगोचे व्हरायटीज, so that it will grow as a one single plant. अब grafting के advantages क्या है मैं बताती हूँ। The plant which is rooted in the soil, जिस plant की stem soil में rooted है उसे हम बोलते हैं stalk, और जो plant part हम दूसरे किसी plant से ले रहे हैं कट करके, इसे बोलेंगे हम scion. Scion is joined on the stalk. Okay, for example, अब स्टॉक के पास ये जो वाला प्लांट है, स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया है, इसके पास कैरेक्टरिस्टिक है हाई यील्डिंग वैरायटी। हाई यील्ड यानी इसमें इससे हमें काफी ज्यादा प्रोडक्शन मिलेगा। और ये जो सायन है इसमें कैरेक्टरिस्टिक है डिसीज रेजिस्टेंस, यानी ये जो प्लांट है इसमें जीन्स है जो डिसीज, कोई भी डिसीज इस प्लांट पे नहीं होता। दिस इज वेरी सुपीरियर वैरायटी, डिसीज फ्री। तो अगर ये डिसीज फ्री वाला कैरेक्टर हमें इस प्लांट में इंट्रोड्यूस करना है तो हम क्या करेंगे, सिंपली इस पार्ट को इसके साथ ज्वाइन कर देते हैं ताकि दोनों के कैरेक्टर्स, सुपीरियर कैरेक्टर्स एक साथ कंबाइन होके एक पूरा सुपीरियर प्लांट आपको मिले। फॉर दिस पर्पस ग्राफ्टिंग इज डन। गेटिंग दिस? तो फॉर एग्जाम्पल ये रोज प्लांट है सपोज, जिसके ऊपर रेड कलर के रोजेस आते हैं, और ये जो है ये व्हाइट कलर का रोज है, ठीक है। तो व्हाइट बर्ड अगर हमने इस रेड कलर के प्लांट के साथ ज्वाइन कर दिया बाय द टेक्निक ऑफ ग्राफ्टिंग, तो हमें फ्लावर्स कैसे मिलेंगे, क्या चांसेस है फ्लावर्स मिलने के? कॉम्बिनेशन ऑफ रेड एंड व्हाइट, वी कैन गेट कॉम्बिनेशन ऑफ रेड एंड व्हाइट फ्लावर्स। ओके, रेड फ्लावर्स, रेड और व्हाइट ऐसा मिक्स आपको मिलेगा एक ही फ्लावर में कलर। देखा है आपने ऐसे फ्लावर्स देखे होंगे, है कि नहीं? या तो फिर आपको डायरेक्टली पिंक कलर का फ्लावर मिलेगा। रेड, आपने वाटर कलर्स कभी किए? रेड के साथ आप व्हाइट मिक्स कर देते तो पिंक कलर बनता है, पता है आपको? तो ग्राफ्टिंग टेक्निक में हम यही करते हैं, दो प्लांट्स को ज्वाइन करते हैं, ओके, सो दैट they'll grow as a one single plant. आया समझ में? आर्टिफिशियल मेथड्स। तीसरा मेथड है टिश्यू कल्चर। इट इज अ मेथड बाय which a small amount of plant tissue is carefully grown to give many plantlets. Micropropagation method is also used nowadays. अब next is tissue culture. ये इसके ऊपर काफी कुछ बताया जा सकता है, तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। एक वापस आपको आगे लेसन है बायोटेक्नोलॉजी, उसमें आप पढ़ेंगे टिश्यू कल्चर के बारे में, सो आई नॉट डिस्कस इलैबोरेट हियर। टिश्यू कल्चर में क्या किया जाता है, कोई भी प्लांट का पार्ट आप ले सकते हैं, इट कैन बी अ सेल, इट कैन बी अ ऑर्गन, इट कैन बी अ टिश्यू, एंड यू कैन ग्रो प्लांट्स इन लैब। हम लैबोरेटरी में प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। दिस टेक्निक इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर। ओके, तो ये हो गए आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपैगेशन। नेचुरल मेथड्स कौन से हैं? ये जो यहाँ मेंशन किए हैं,
by root, by leaf, by stem. These are natural methods of natural vegetative propagation. और ये वाले हैं artificial methods, cutting, grafting, bud grafting and tissue culture. Clear? यहाँ तक सब क्लियर है? क्लियर है सभी को? गिव मी रिप्लाई. कुछ रिपीट करना है वापस? किसी को समझ में नहीं आया? ऑल शुड अंडरस्टैंड एट अ टाइम. ऑल क्लियर? Any doubts? Any doubts? Anyone having any doubts? Yes. Clear. Okay. Okay. So आगे बढ़े हम. तो हमने अभी तक क्या देखा? रिप्रोडक्शन, फर्स्ट टाइप, फर्स्ट मेथड और सेक्सुअल. और सेक्सुअल में हमने डिफरेंट मोड्स देखे. फ्रैगमेंटेशन देखा, बडिंग देखा, स्पोर फॉर्मेशन देख लिया, कटिंग, ग्राफ्टिंग, बडिंग. अब हम चलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये काफी बड़ा पार्ट है लेकिन काफी इंटरेस्टिंग है. ओके, अगर आपको प्लांट्स अच्छे लगते हैं तो आपको काफी इंटरेस्टिंग पार्ट लगेगा ये. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, इट इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ टू कंपैटिबल गैमेट्स. तो अगर आपको मैं पूछूं कि सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है, तो आप क्या बताएंगे? Asexual reproduction does not involve fusion of gametes, but sexual reproduction involves fusion of two gametes. Gametes यानी sex cells, that is male gamete and female gamete. All organisms reach to the maturity in their life before they can reproduce sexually. हर एक organism mature बनता है before the process of reproduction starts. Every organism becomes mature. In plants, the end of juvenile or vegetative phase marks the beginning of reproductive phase and can be seen easily in the higher plants at the time of flowering. अब हम plants में, जैसे आपको पता है हमारी लाइफ के स्टेजेस होते हैं, जैसे कि चाइल्डहुड, फिर टीनेज, फिर होता है अडल्ट, फिर हम अडल्ट बनते हैं और फिर हम ओल्ड एज की तरफ जाना शुरू कर देते हैं कि नहीं? चाइल्डहुड, देन टीनेज, दैट इज adolescent age, then we become mature, we become adults, and then we become old. तो ऐसे स्टेजेस प्लांट की लाइफ में भी होते हैं. जब आप सीड कोई लगाते हैं, सीड जर्मिनेट होता है, देन सीड डेवलप्स लीव्स. ठीक है, तो सीड में जब तक लीव्स बनते हैं तब तक सीड उस प्लांट की ग्रोथ होती है. प्लांट इज इन इट्स वेजिटेटिव फेज यानी ग्रोइंग फेज, जुवेनाइल फेज. और जब प्लांट्स के ऊपर फ्लावर्स फॉर्म होने शुरू हो जाते हैं, प्लांट्स व्हेन दे स्टार्ट फ्लावरिंग, जब फ्लावर्स बनते हैं प्लांट्स के ऊपर, तब उसे हम बोलते हैं दैट द प्लांट हैज नाउ एंटर्ड in the reproductive phase. The plant has entered in the reproductive phase. Okay, तो ऐसे दो फेज होते हैं प्लांट के लाइफ में, juvenile and reproductive phase. The flower is specialized reproductive structure of a plant in which sexual reproduction takes place. So once our plant has attained maturity, the plant starts flowering. Plants में flowers produce होने शुरू हो जाते हैं. Now flower is a very important organ part of the plant which takes part in sexual reproduction. आपको याद है मैंने आपको पढ़ाया था टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर. फ्लावर का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम. ऋतु को पता होगा, ऋतु, योगिता, you all were present that time. Aditya, do you remember that? याद आ रहा है आपको? हमने पढ़ा था parts of the flower, calyx, corolla, androecium, gynoecium. Yes,
So flower is known as the reproductive part of the plant. The function of flower is to produce haploid gametes and to ensure that fertilization will take place. अब flower का function क्या होता है? To produce gametes. To produce gametes, male gamete and female gamete. Typical flower consists of 4 different whorls: calyx, corolla, androecium and gynoecium. So yes, क्या आपको नजर आ रहा है यहाँ पे फ्लावर का स्ट्रक्चर? तो क्या आप इसको लेबल कर सकते हैं? कैन यू टेल मी द लेबलिंग्स? आई विल आस्क यू, सी व्हाट इज दिस पार्ट नोन एज? इस पार्ट को क्या बोला जाता है? आप आंसर कर दीजिए, फिर मैं यहाँ पे लिख लूंगी व्हाट इज दिस पार्ट नोन एज. वेरी गुड रुतु. ओके, सो दिस पार्ट green colored leafy structure is known as the first whorl of the flower, calyx. Also the members of calyx are known as, कैलिक्स के मेंबर्स को हम क्या बोलते हैं? सेपल्स. याद है आपको? सेपल्स बोला जाता है. इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ कैलिक्स आर नोन एज दी सेपल्स. ठीक है, फिर कैलिक्स के बाद ये दूसरा लेयर कौन सा है? सेकेंड वॉल. इट इज दी करोला. वेरी गुड. पेटल्स. करोला, दिस कंप्लीट वॉल इज करोला. करोला में अगर आपको पूछती हूँ कितने पेटल्स है, तो आप क्या बोलेंगे? 1 2 3 4 पेटल्स. कैलिक्स में आपको पूछती हूँ कितने सेपल्स है, आप बोलेंगे 1 and 2. ओके, नेक्स्ट ये कौन सा वॉल है? व्हाट इज दिस नोन एज? एंड्रोशियम. एंड्रोशियम की इंडिविजुअल मेंबर्स को हम बोलते हैं स्टैमेन. क्या बोलते हैं? स्टैमेन. स्टैमेन के 2 पार्ट्स होते हैं, फिलामेंट एंड एंथर. फिलामेंट एंड एंथर. ओके, नेक्स्ट व्हाट इज दिस पार्ट? ग्रीन कलर्ड, ये स्टिग्मा. क्या लिखेंगे? स्टिग्मा. उसके बाद ये ट्यूब की तरह पार्ट है, इसे हम बोलते हैं स्टाइल. क्या बोलते हैं? स्टाइल. एंड दिस वन, व्हाट इज दिस? दिस पार्ट इज नोन एज ओवरी. ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है, ओवरी. ओवरी, और ओवरी के अंदर ये छोटे छोटे रेड कलर के ओव्यूल्स. क्या है? ओव्यूल्स. तो ये आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है. I've studied this in 11th. Yeah, I'll try to write this. सबसे पहला ये पार्ट कौन सा है? कैलिक्स. उसके बाद फिर दिस इज करोला. ये बन गया आपका करोला. उसके बाद नेक्स्ट ये है फिलामेंट. फिर नेक्स्ट है एंथर. देन दिस पार्ट इज, यहाँ पे आएगा एंथर, स्टिग्मा. Then this is style. This is ovule. And this is ovary. ठीक है, तो आपको भी ऐसे लेबल करना है पेंसिल से आपके टेक्स्ट में.
If you have text, you can label. Okay, this is a revision type. ये आपने पढ़ा है already. Typical structure of flower. Okay, so in the next lecture now we'll study. Okay, we'll study sexual reproduction. Okay, we'll start with TS of anther. Structure of anther कैसे होता है, यानी हर एक पार्ट फ्लावर का हम डिटेल में पढ़ेंगे. एंथर का स्ट्रक्चर, गाइनोशियम का स्ट्रक्चर, ओवरी, ओव्यूल्स, सो एवरी पार्ट इन डेप्थ, डीप में हम जाके इसको पढ़ेंगे. ठीक है, फाइन. अंडरस्टूड टुडेस पार्ट. होमवर्क, वेरी गुड एकता. चलो ले लो होमवर्क, टेक डाउन होमवर्क. Draw neat label diagram of typical structure of flower with neat label diagram. Draw neat label diagram of typical structure of flower. तो आप ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उसको ठीक तरीके से लेबल करेंगे. सेकेंड क्वेश्चन, explain the methods of asexual reproduction. Explain the different methods of asexual reproduction, जिसमें आप fragmentation, budding, grafting, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, ये डिस्क्राइब करेंगे. इन शॉर्ट आप लिखेंगे आंसर इसका, आपको जो समझ में आया. थर्ड क्वेश्चन फॉर होमवर्क. Explain artificial methods of vegetative propagation. Explain artificial methods of vegetative propagation. Explain. ओके, तो आप होमवर्क करेंगे सभी लोग. एंड जो हमारे ऐप में चैट वाला सेक्शन है, वहां पे आपका होमवर्क जो है अपलोड कर देंगे. ठीक है, यू शुड अपलोड योर होमवर्क, सेंड योर होमवर्क इन द चैट सेक्शन. ठीक है, न्यूक्लियर का जो चैट वाला सेक्शन है वहां पे होमवर्क, जैसे आप फिजिक्स का सेंड करते हैं, मैथ्स का, वैसे ही बायो का भी करना है. ठीक है, ओके. So that's it for today. We'll stop now. Chalo, bye everyone. See you in the next lecture. Next lecture जब होगा उससे पहले आपको रिवाइज करना है जो भी आज हमने पढ़ा है. ठीक है, ओके, बाय.